स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मुस्लिम एमएलसी बनाकर सामाजिक इंसाफ दे कांग्रेस, मुस्लिम लीडरों ने किया प्रस्ताव पारित। बीजापुर के कांग्रेस लीडर एकजुट, एमएलसी पद के लिए करारदाद मंजूर। आज बीजापुर जिला कांग्रेस दफ्तर में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष शब्बीर जागीरदार की अध्यक्षता में जिला के तमाम कांग्रेसी लीडरों ने एक अहम मीटिंग की, जिसमें तमाम लीडरों की सहमति से ये प्रस्ताव करारदाद मंजूर की गई कि विधान परिषद एमएलसी इलेक्शन के चलते जिला के मुसलमानों का पार्टी के प्रति वफादारी योगदान को ध्यान में रखते हुए इस बार बीजापुर से किसी एक मुस्लिम कांग्रेस लीडर को एमएलसी बनाकर इस समुदाय के साथ सामाजिक इंसाफ करें। कांग्रेस की आवाज़ लगाई। इस मीटिंग में मौजूद कांग्रेसी लीडरों में अब्दुल हमीद मुशर्रफ, मोहम्मद रफ़ी टपाल, आज़ाद पटेल, एसएम पाटिल गनीहार, चांद साहब गड़गलाव, ज़मीर अहमद बख्शी, एमसी मुल्ला, आयम इंडिकर, डीएच कलाल, एचएम बागवान, याकूब नाटिकर, फयाज कलादगी, अनवर जमादार, दस्तगीर सालोटगी, इलियास सिद्दीकी के अलावा कई पदाधिकारी और कांग्रेसी नेता रहे इस हंगामी मीटिंग में शामिल। हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दी, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ दी और हमारी ताकत को हमें दे गई। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमें यहाँ पर जीत लेने 2 बार हमने टिकट दिए। हम उसका पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं टिकट देने वास्ते, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम 135 सीट है। ये हमारे मुस्लिम वोटरों का उनके ऊपर एक ये है, विदाउट मुस्लिम वोट के बगैर कभी वो जीत नहीं सकते, लेकिन ये मुसलमानों को समझना चाहिए। गए बार भी एक हो गए, इस बार मोदी को हटाने के लिए इस बार भी एक आप सब मुसलमान इसमें साथियों का तो बहुत बड़ा हाथ है। कोई मुसलमान पैसों के लालच में कोई सही है, पर इधर उधर तो क्या होता है कि हमको जब नजदीक किया जाता है तो हिंदू वोट नहीं आते। ठीक है, हमें वो बर्दाश्त करें, साइड में रखें। इलेक्शन के लिए आपको फैक्ट क्या है, आपको आने वाले जून 13 को जो है नॉमिनेशन है, एमएलसी हो रहा है 11 है, उसमें क्लियरली 8 चुका था मेजोरिटी वाइज 8 चुका। पूरी जोश में जो है हर लीडर्स को मिले, सब कह रहे प्रॉमिस करें, लेटर दिए। फर्स्ट लेटर दिया संजय राज्यवर्धन साहब। ताजुब की बात यह है कि राज्यवर्धन प्रेसिडेंट बने, उसमें क्या ऐसा हुआ वो नहीं मालूम। ऐसी पॉलिटिक्स होती है हमारे साथ। मुस्लिम समाजಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಆನಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂರಿನ ನಿರ್ಣಯ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೇತೃತ್ವಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಸೋದು ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ। ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, MLAಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಅವ್ರೊಂದು ಏನಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಾಪುರವರೆಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು ಮತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತದವ್ರಿಗೆ। ನಾವು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು। ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ತನಕ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು। ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೂ ಪಾಲು ಕೊಡಿ। ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಲ 1%, 10% ಪಾಲು ಕೊಡಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ। ಬರೀ MLC ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ। ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋರು ನಾವು, ಕಸ ಹೊಡೆಯೋರು ನಾವು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕುಡಿಸೋರು ನಾವು, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋರು ನಾವು, ಕಳಿಸೋರು ನಾವು,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು 65 ವರ್ಷ ಮುಗಿತದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಂಡ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಆರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಥರ ನಡೆದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕೂಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು MLAಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮನಸಾಪೂರ್ವಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತದೇ ಹಳೆ ಮಂದಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಇಬ್ಬರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಳೆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸುವರು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ मेरी शादी है, मेरी वो है, ये है, ಇವತ್ತು 20 ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ हम शादी में वो शादी में ये शादी में ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿಕರು ಬಂದುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ 600 ಜನ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ಭಾರತ್ ಜೈ. MLC राजसभा में जितने भी मुस्लिम फिगर बने आज तक स्टेट में जो है हमारे कौन सी जो है पैदा नहीं हुई, ज़्यादातर खास कर हमारे जिले के लोगों को पैदा नहीं हुआ। इसलिए जो है हमारी एक मान गया है कई समाज जो है वो बोले हमारे पास तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकता। अब का जमाना जो है ऐसे वो सब कांग्रेस वो जमाने में जो है इसलिए जो है पूरे लोगों को इधर मालूम है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है सब लोग जो है जो मंग रहे हैं कहीं के नाम से जो मंग रहे हैं वो पहले अलग अलग कम्युनिटी की तरफ से स्टेट के युवा मंडली के अध्यक्ष हैं। आज 2 बार हमें हुकूमत था, पहले बहुत बार आ चुकी है, लेकिन लास्ट टाइम बिहार जिले में कोई भी एक मुस्लिम की लीडर की जरूरत नहीं है कि आपको क्यों नहीं चाहते कि आप मुसलमानों को लीडर बनाए, क्यों आप पसंद नहीं करते कि आपके बाजू कोई हमारा एक मुस्लिम भाई कुछ बात बैठ जाए तो आप नफरत की नजर से देखते हैं। हमारे लोग जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऊँट पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं तो आप इस टेढ़ी नजर से देखते हैं। वो बात करना तो चाहिए। अगर हमारे नौजवान सब MLA तक जाकर रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह इस MLC हम जरूर ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा हक है। 10 साल में 2 बार हमी भाई को कांग्रेस टिकट मिला, दोनों बार हम लोग जो है ताना में चुना करते हैं, 1 लाख से ऊपर हमारे वोट हैं। इसके बावजूद भी हम आ रहे हैं। क्या घोड़ा को मालूम नहीं ये बात का? हम तमाम लोग जो है उनको इलेक्शन करते हैं तो हमारा पूरा वोट देते हैं, उनको हमारा पूरा सहमति से इलेक्शन करते हैं। जब हमारी बारी आती है तो पीठ दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिम्मेदारी मैं इससे पहले अभिप्राय बोला था, मैं अभिप्राय यहाँ तक बोला था कि हम लोग यहाँ से लेकर बेंगलुरु में चलते जाएंगे कि आप MLC दें, अगर आप हमारा साथ दे दो। तो बोले उस समय मैं आपको मैं चला रुको, गड़बड़ मत दो। ये बात मैं आज की बात निकल रहा हूँ, शायद मैं इलेक्शन हुए से 1 महीने के बाद भी बात करा था। मैं तो बोला यहाँ सबको लिंक बनाओ हमारे घर को। अब देखो बेंगलुरु में क्या है हालत है, उत्तर कर्नाटक यानी बिजापुर हमें जो है यहाँ से 600-700 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे लीडर हमला नहीं मिलते होगा एक बार में। जब हम लोग आते हैं तो हमें 10 किलोमीटर पहले जाकर उनका स्वागत करने के लिए कहते हैं। ये हमारी हालत है। हमारा एक लीडर है तो हम लेकर जाकर साथ में जाएंगे तो हमारे काम हो सकते हैं। तो टमाटर में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या हो रही है? यहाँ से आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। यहाँ की आवाज हमारे पहली बार मैं तो समझता हूँ कि हमारी आवाज पहली बार हमारे बिजापुर कांग्रेस ऑफिस में गूंज रही है। यह आवाज इससे पहले भी गूंजना चाहिए था, नहीं गूंज रही। इंशाल्लाह इसके बाद हर बार आप मीटिंग बुलाएंगे, ये आवाज और भी ज्यादा गूंजेगी। ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये हाल नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्टेज में आप उतने लोग इंटरेस्टेड है आपके एक आवाज बनाने के लिए। जो लोग भी होना चाहिए फिर हमारे आजाद पटेल साहब ने भी अच्छी बात की कि भाई आप लोग बाकी बातों में लड़ने से भी इस तरह से काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि बीजापुर में बैठ कर कितना भी डिस्कशन करो होना तो डिसीजन बेंगलुरु और दिल्ली में। तो हम लोग बेंगलुरु पहुंचना, दिल्ली पहुंचने का किस तरह से लाए अमल बनाए, दफ्तरगारी के जिसे कहते हैं
वो काम भी हो जाए। नसीमुल्लाह साहब ये बात कर रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका हम हकदार है। एस एम पटेल गनियार साहब, हमारे इंडिकर साहब बोले थे, एस एम पटेल साहब का एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें बेंगलुरु दिल्ली के लीडरों से भी ज़्यादा हमारे लीडरों को होशियार करना, उनको अवगत करना है कि भाई ऐसा है हमारा डिमांड है और हम इसके हकदार हैं। ये हमारे कोई भीख नहीं है या तो हमारे कोई मेहरबानी की तरह हमें नहीं है, ये हमारा हक है, हक को हम लेना है और हक को अक्सर मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। ये बात हम याद रखना। तो हक को हम मांगने से ज़्यादा छीनने के लिए तैयारी करना। नाटीकर साहब भी बड़े जो शेख मलाल साहब करते हैं, तो बात कुल मिल के यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं। ये हमारा बहुत दिनों से, क्योंकि एमएलसी का पहले कौन से जमाने में एक तो नाम बोल रहे थे, एक दो थे होगा अकबर शेख का हमें सुने थे, उससे पहले जानवेकर साहब का मुझे खुद नहीं मालूम, तो बहुत दिन हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि नाटेकर साहब बोल रहे थे पहली बार यहाँ माइनॉरिटी, ये तो नाटेकर साहब को शायद मान लें कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वास्ते, कमेटी के प्रेसिडेंट के वास्ते तकरीबन 100 लोग एक महीना तक थे, यहीं पे मीटिंग होते थे। और बीजापुर का चांद साहब है, ऐसे गनियार है, इंदिकर साहब है, काफी लोग, आजाद पटेल थे, ऐसे कोई भी नहीं है ऐसा नहीं। इतना पूरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर के घर घर को जाओ, फोन करो। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा पटेल फोन करे फैक्ट्री में पहुंचे थे, बेंगलुरु में परमेश्वर साहब के साथ मीटिंग है, उनको तो अध्यक्ष थे, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर, उनको मैं बेलगाम में रुका, ऐसे लिफ्ट में रुका तो मैं सब लोग बात करे, हमारी मांग कभी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कभी आवाज नहीं। और रही बात एमएलसी की, हमारे स्पेसिफाइड एमएलसी की बात याद है हमें, परसों से हमारे लोनी साहब अपना चार्ज लेते हो हमारी एक मीटिंग बुलाई थे, हमारे शबीर साहब याद है, तो वो मीटिंग में भी हमने सब लोग कितने जने, सब जने गेस करे थे कि मुसलमान बीजापुर मुसलमान एमएलसी सीक्रेट, ऐसा हमें बालगुर साहब के कान को रखें, अभिपल साहब के कान रखें, ये सब के सब कान रखते हैं। लेकिन जब वो सब लोग कबूल थे, जब तवा गर्म होता तभी जरा ये करें तो अच्छा लगेगा। तो हमारा ये हक है, इंशाल्लाह हम सब लोग मिल करेंगे, इसे भी मिलना चाहिए, हर एक का हक है। मैं इतने दिन तक मैं वो करने से भी हम अपने अपनी कोशिश करेंगे। हाईकमांड है हमारे बीजापुर से, सीनियर लीडर्स हैं, बेंगलुरु के सीनियर लीडर, दिल्ली वाले मिलकर जो डिसीजन लेते हैं, लेकिन कहीं भी हमें रास्ता नहीं भटके, जैसा जो तुम्हें बोल रहे थे, दिल में जले हाथ चल के जाए, ऐसा कुछ भी ना करके जो भी बाकी चीजें हैं, ये देना है, कैसा लेकर ये बैठ को हमारे शल्य जगह इनिशिएटिव लिया, मीटिंग भी करो, ये चीज हमें उनको बोल को किस तरह से करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन कौन करना चाहिए, इसे पूरा दिलो जान से ये कोशिश करेंगे। चाहे कोई भी हो, अपना उतनी ही खुशी हो, चाहे कुछ भी हो। हमारा एक आदमी, एक एमएलसी हमारा बीजापुर सिटी में बैठा है या डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, तो हमारे कई दिन बोले तो प्रॉब्लम्स करते हैं हमारे लोगों के, छोटे मोटे हमारे हक के लिए मांगना और हक के लिए लड़ने के वास्ते मांगना पूरा ये है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हर एक का एक्नॉलेज करता है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमने छोड़ को पॉलिटिक्स से इलेक्शन करने का सोच भी नहीं करते। आज मुसलमानों का ये जो ये है सपोर्ट उतना इम्पोर्टेंट होता है। हमारा ये फिक्स्ड डिपॉजिट पकड़ को गिनती हो। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार अली गोट फार्म, बकरीद, अकीका, शादी और खासकर कुर्बानी के बकरे, जवारी बकरों का बाजार अली गोट फार्म। सिर्फ मोबाइल नंबर पर करें कांटेक्ट। अठालट्टी तांडा, तोरवी रोड, बीजापुर।